Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. And here is the session 16 of Communication Skills Development and Learning class. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. We have learned the difference between how to use also, as well, and to in order to add something to the existing sentence, in order to add some extra information or extra anything. And then we understood where we use here and where we use listen. So listen is when you pay attention to some sound, whereas here is used for the capability of responding and capturing sounds. Both are verbs. And then we understood what is digital detox. It is a time for which you stay away from all those devices which can be connected to internet. And step on it is when you want to try, when you want to say somebody, please hurry up, be quicker, be faster. That is step on it. And then we had root word analysis of these words: sieve, sept, centaur, centi, centri or centro, and cerebro or cerebri. And then we understood how to change simple tenses into continuous tenses and vice versa. So, as I told you earlier, that we are going to have a very dedicated session for facial expressions. And mistakenly, I have logged in into this account, which I was not supposed to right now. So that I was trying to get extra time for us. So I bought a license of this Zoom. I'll use it in the later sessions in case we are time. But right now, let's क्या continue with this. है ना एक Okay, पीडीएफ बनाऊंगा इसकी 8 दरड़ा guys, please make sure your mic is off when you mic is on mute when you join this session. Just let me connect one more guy. Okay, so there is someone else whose mic is on. Just give me 1 second. Yeah. So everybody's mic is off now. This is going to be a very interactive session. You guys have to answer a lot of things, and I have to tell you a lot of things. So first of all, let us understand what are facial expressions and how they are generated, or how they are coming into form on our faces, and what involves facial expressions actually. So this is the piece of information that you already have, that a facial expression is one or more motions or positions of, of muscles beneath the skin of face. These movements convey the emotional state of an individual to observer. So you already know what are facial expressions, right? And what are the significances of facial expressions, that you also know already. I mean, you have a idea about facial expressions. Is there anyone who do not know what are facial expressions? Before we proceed further, it is very important to have an idea about what we are learning today. कोई है जिसको नहीं मालूम है फेशियल एक्सप्रेशंस कहाँ से आ गया, ये क्या चीज है? बिकॉज जो आगे पढ़ने वाला है वो सारा इसके आगे पीछे घूमेगा. ओके, सो सी हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे इसमें. एक तो है फेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि किस क्या एक्सप्रेशन क्या दर्शाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनते हैं हमारे चेहरे पे, और कौन से मसल्स या कौन से नर्व्स इन्वॉल्व हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के केस में. तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं इसके बारे में. सो लेट्स गो फर्दर. कैन यू रिकॉग्नाइज दीज एक्सप्रेशंस? क्या आप में से कोई बता सकता है ये क्या मतलब, या किसी को कोई आइडिया है कि कहाँ पर खुशी जाहिर हो रही है, कहाँ पे गम जाहिर हो रहा है, कहाँ पर रिलैक्सेशन जाहिर हो रही है, कहाँ पे शरारत जाहिर हो रही है? मतलब see, these are all facial expressions, and these signify something. These expressions show something to the observer. So any of you have any idea what these expressions are conveying to you? Look at this smile, or this smile, or this smile. So what are all the differences between these faces? Has someone any idea about them? So the first one is conveying that the person is so happy that they are laughing out loud. Okay, yes, this one is correct. So you have a brief idea about faces, right? Whenever somebody makes a face in front of you, you can get to know why their mental state, right?
Okay, so first we'll learn how they come and what are they actually. So I'll give you a very brief idea. मैं आपको थ्योरी पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, ये थ्योरी आप खुद वीडियो देखकर पढ़ लेना। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। हमारे फेस के अंदर फेस जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मसल्स एंड फाइबर्स में से एक है, और लगभग 43 स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अनोनमस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। और ये सारे के सारे मसल्स कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम में किसी और बॉडी पार्ट के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है, बिकॉज जो हमारी जो हमारे फेस के मसल्स हैं वो सारे के सारे क्रेनियल नर्व जिसको हम कहते हैं या फिर फेशियल नर्व जिसको हम कहते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। और फेशियल नर्व का एक एंड हमारे फेस के मसल्स में जाता है और दूसरा एंड डीप इनसाइड द ब्रेन जाता है, और वहां से वो हर एक बॉडी पार्ट के साथ लगभग कनेक्ट करता है। और यही एक रीजन है, आप देखोगे कि वॉलंटरीली या फिर नॉन अनवॉलंटरीली जब हम हाथों से या अपनी बॉडी मूवमेंट से कोई गेस्चर बनाते हैं, हमारे फेस पे उसी के जैसे एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक। और इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये वायर्ड अप है हमारे प्राइमरी मोटर रीजन के साथ, जो कि नियोकॉर्टेक्स रीजन है हमारे ब्रेन का। अब नियोकॉर्टेक्स रीजन जो है वो एक ऐसा रीजन है हमारे ब्रेन का जो एक हिसाब से सेंट्रली पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ। इसीलिए हम जब भी किसी को कोई गेस्चर या कोई पोजीशन में खड़ा या बैठता या चलता हुआ या कुछ करता हुआ देखते हैं तो उसके चेहरे पे एक अलग भाव आता है, एक अलग एक्सप्रेशन आता है। और इसी के साथ हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये प्राइमरी मोटर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, और ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं हमारे ब्रेन की मेंटल स्टेट को, एकदम कन्वे कर देते हैं सामने देखने वाले को या ऑब्जर्वर को। तो इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, ये जो हिस्सा है ये हमारा ब्रेन है। हमारे आईज नोज फेस और लिप्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। टीथ गम्स और जॉ जो है वो हमारे लोअर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, टंग और फोनेक्स भी। और उसी तरह ये हमारे फेस के पार्ट्स हैं सारे के सारे, जो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं काफी डीपली। तो इसकी थ्योरी सिर्फ इतनी सी है, इसको पढ़ लेना एक बार वीडियो में देखकर। मैं इसके बीच में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये सेशन पूरा यही खत्म हो जाएगा। और इन केस किसी को कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी में तो प्लीज लेट मी नो एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर। आपको देखना है एक बार और किसी को तो मैं पीछे दिखा सकता हूँ, otherwise we can move further. Is there anyone who wants to see? Okay, so let's go to the expression. So universally there are a few handful of expressions. कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो थोड़े से हैं, उसको हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है। और बड़ी बात ये है कि कल्चर्स जो है ये वो एक्सप्रेशंस को डिफरेंटली एक्सेप्ट करते हैं जैसे। और इनका जो इवोल्यूशन है एक्सप्रेशंस का वो भी काफी अलग सा है, वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ काफी मैच करता है। इसका एक प्राइमरी एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आईब्रोज को खड़े करना और आंखों को बड़ा करना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जो नोमैडिक पीरियड में जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव या फिर जो पुराने लोग थे बहुत पुराने, वो क्या करते थे, जो शिकार करते थे अक्सर, वो दूर अपने प्रे को, अपने शिकार को देखने के लिए आईब्रोज खड़ी करते थे और आंखें बड़ी करते थे ताकि उनको दूर का दिखाई दे। अब ये जो एक्सप्रेशन है विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, विद द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस टोटली डिफरेंट हो गया है। क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन जो है ये सरप्राइज को शो करता है, क्योंकि अब कोई बाहर तीर कमान या पत्थर के बने हुए औजार या अपने भाले वाले लेकर शिकार करने नहीं जाता और उसको दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास बायनोकुलर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो हमें दूर तक देखने में हेल्प करती है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि एक्सप्रेशन तो रहा मगर उसका यूज बदल गया।
और इसी तरह कल्चरली भी एक्सप्रेशंस काफी डिफरेंट है। जैसे कुछ कल्चर्स में आईब्रोज को ऊपर नीचे करना वो शो करता है कि आपकी एक्सेप्टेंस शो करता है कि हाँ जो आप बात आपको कही जा रही है वो आप मान लोगे या वो आप कर लोगे। जैसे आपके फादर ने आपको बोला मुझे पानी पिला दो और आप आईब्रोज ऊपर नीचे करोगे, दैट मीन्स योर फादर विल अंडरस्टैंड दैट you accepted that you will bring him water in order to drink. Okay, but in some cultures it is considered very rude to make your eyebrows up and down in front of elders. So कुछ cultures में ये बड़ा rude माना जाता है, एक बदतमीजी की तरह लिया जाता है। तो इसीलिए जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कल्चरली बहुत डिफर करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी या फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ इशारे ऐसे हैं हमारे फेस के, जैसे आंख मारना। अब आंख मारने का जो इशारा है वो छोटे बच्चों को छेड़ने के भी काम आता है, वो किसी ऑपोजिट जेंडर को कुछ इशारा करने के भी काम आता है, और वो इस चीज का भी इशारा है कि हाँ प्लीज गो ऑन विद व्हाट यू आर डूइंग, आई एम विद यू। कि हाँ तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, डोंट वरी आई एम स्टैंडिंग देयर विद यू। सो ये तीन अलग अलग कल्चर्स में इसकी तीन अलग अलग मीनिंग है, जबकि एक्सप्रेशन एक ही है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जितने जब भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं उसमें हम एक यूनिवर्सल सेट निकालते हैं एक्सप्रेशंस का, जिसमें 7 या 6 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस को माना जाता है जो कल्चरली सब में सेम है। जैसे हैप्पीनेस है, एंगर है, सरप्राइज है। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो लगभग लगभग एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में सेम है, और हम आज उन्हीं को पढ़ेंगे। और फिर माइक्रो एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए हमारे चेहरे पे होते हैं, जिसको आप कह लो कि वो नैनो सेकंड्स के लिए हमारे चेहरे पे होते हैं। अब वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं they are there for a very brief amount of time, very small period of time, but their significance is extremely large। ठीक है, तो हम उनको भी देखेंगे। तो जैसे हमारे यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस में जो है वो है सरप्राइज, फेयर, डिसगस्ट, कॉन्टेम्प्ट और एंगर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। तो सरप्राइज हो गया चौंक जाना, फेयर हो गया डर लगना, डिसगस्ट हो गया बहुत अजीब सा लगना, मन खराब होना या बुरा लगना, कॉन्टेम्प्ट हो गया दूसरे को अनवर्दी समझना या अपने से नीचा समझना, एंगर हो गया गुस्सा, सैडनेस इज दुख, एंड हैप्पीनेस इज खुशी। And then we have some micro expressions which are there for a very small period of time on our face, and their significance is very large। और आपको अगर इन expressions को समझने की प्रैक्टिस करनी है तो I'll give you an advice कि go in front of mirror and try to make these expressions on your face। अगर आप ये expressions अपने चेहरे पे पहचान लोगे तो ये expressions आप दूसरों के चेहरे पे भी पहचानना शुरू कर लोगे। और ये एक ऐसा हार्ड कोर रॉकेट साइंस नहीं है जो कोई समझ नहीं सकता, या सिर्फ साइकोलॉजी वालों के लिए है, या पर्टिकुलरली रिक्रूटर्स के लिए है, या इंटरव्यूअर्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी साइंस है जो हर कोई सीख सकता है, बस इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इतना सा है इसमें। सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट व्हाट आर यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस एंड व्हाट आर माइक्रो एक्सप्रेशंस। यही यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस चेहरों पे माइक्रो एक्सप्रेशंस भी बन जाते हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए आते हैं। सो किसी का कुछ पूछना है इन एक्सप्रेशंस के बारे में? ओके, लेट्स गो फर्दर। सो हम क्या करेंगे, हम जो फेस के 3 पार्ट्स हैं हम फेशियल एक्सप्रेशंस में उनको पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी बाकी एक्सप्रेशंस रह गए हैं उसको हम बॉडी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर स्टडिंग टुडे इज आईब्रोज। सो आईब्रोज की मूवमेंट्स हम देखेंगे कि वो क्या दर्शाता है, देन आईज की और फिर माउथ की। सो आईब्रोज टेल यू अ लॉट अबाउट व्हाट ए पर्सन इज फीलिंग। सो आईब्रोज क्या होते हैं, ये बहुत कुछ बता देते हैं कि एक आदमी का एक्चुअली में वो उस टाइम क्या फील कर रहा है, वो किस मेंटल स्टेट में है, या फिर वो क्या सोच रहा है। और इसके अलावा आईब्रोज जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है किसी के भी लिए, और आईज भी बराबर है, मतलब जितना आईब्रोज इंपॉर्टेंट है उतना आईज भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आईब्रोज, वो है रेज्ड एंड आर्च्ड। रेज्ड हो गया उठी हुई आईब्रोज, और आर्च्ड हो गया गोल आईब्रोज। तो किसी को आइडिया है कि ये क्या दिखा रहा है? ये हो गया रेज्ड आईब्रोज एंड आर्च्ड, जैसे तीर कमान
कि वो कमान होता है एक सी शेप का, सो दैट इज आर्च्ड एंड रेज्ड, इसकी आईब्रोज ऊंची है, तो ये क्या दिखाता है? Surprised? Yes, this shows surprise. Very good. And the second one is lowered eyebrows and knit together. आंखें नीची होंगी और एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली होंगी या जुड़ रही होंगी, जैसे ये है इस टाइम। तो ये क्या दिखा रहा है? Anger एंगर। वेरी गुड। or frustration. एंड देन इनर कॉर्नर्स ड्रॉन अप, के अंदर वाले जो कोने हैं, जिसका इसके अंदर वाले कोने नीचे की तरफ है, यही अंदर वाले कोने ऊपर की तरफ है, इस तरह से। ये क्या दिखाता है? Sadness. Sad. Very Sadness. Very good. Sad. So everyone is clear about eyebrows? Okay. Let's go with the eyes. The only thing that you tell more about anything after eyebrows is eyes. तो eyebrows के बाद जो सबसे ज्यादा चीजें बयान करता है किसी के चेहरे पे, वो है eyes. Just give me 1 second. Someone has written something in the chat. Okay. Naval answer mic पे देना अब next time. ठीक है, तो but make sure that only one mic is working at a time. तो अब इसमें हम देखते हैं वाइड ओपन। सो ये भी सरप्राइज ही है। अगर आंखें बहुत खुली हुई हैं, बड़ी आंखें हैं, सो दैट इज सरप्राइज। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पहले जमाने में आंखें इस तरह से बड़ी करने का मतलब था कि वो आदमी बहुत दूर तक देख रहा है, लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास बायनोकुलर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, तो इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग या सिग्निफिकेंस हो गया सरप्राइज। एंड देन इंटेंसली शेयरिंग स्टेयरिंग सॉरी इंटेंसली स्टेयरिंग, ये क्या दिखा रहा है? देखो इसमें आप एक चीज और देख सकते हो, ये एक तो घूर रहा है बहुत तेज, और इसकी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है, खड़ी हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है? आप इसको पिछले वाले से भी रिलेट कर सकते हो। सी यू कैन सी द आईज एज वेल एज आईब्रोज। ये क्या Anger. दिखा रहा है? एंगर। वेरी गुड। एंड हैव क्रोज फीट क्रिंकल्स। सो क्रोज फीट क्रिंकल्स होता है जैसे एक कौवा अपने पाँव को उसके पाँव के जो क्रिंकल्स होते हैं उस तरह से। ये क्या दिखा रहा है? ये देखो इसकी आंखें जो है Happiness. हैप्पीनेस, एग्जैक्टली बाहर की तरफ बड़ी होकर बाहर की तरफ जा रही है, सो दैट इज हैप्पीनेस। ठीक है, और अब इसके अलावा आइस के अलावा आइस का जो प्यूपिल है, जिसको पंजाबी में कहते हैं आँख का डेला, या फिर आँख की पुतली कहते हैं आई थिंक उर्दू में। हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो उसकी डायलेशन भी बहुत कुछ दिखाती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो इसमें कोई बंदा रोमांटिक है या रैपिड ब्लिंकिंग है उसकी इस टाइम, या फिर वो स्ट्रेस में है, डिसऑनेस्ट है, नर्वस है, उसकी प्यूपिल काफी कुछ दिखाती है। उसकी पिक्चर्स अभी मेरे पास नहीं है, वो हम बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो हमारा इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके हम बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे। एक तो ये चीज आ गई, और दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा और भी प्यूपिल और भी काफी कुछ दिखाता है। जैसे एक जिंदा इंसान के प्यूपिल पे अगर आप लाइट मारोगे तो वो बहुत नैरो हो जाता है। उसकी आंख का जो गोला है अंदर, वो बहुत छोटी होल बनाता है ब्लैक कलर की, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। वेरएस जिनकी डेथ हो जाती है, डॉक्टर्स ये प्राइमरी टेस्ट करते हैं इमरजेंसी के केस में, वो टॉर्च या फिर मोबाइल से टॉर्च ऑन करते हैं और उसकी आंख में मारते हैं। अगर उसका प्यूपिल डायलेट किया दैट मींस ही इज अलाइव, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दैट मींस द पर्सन हैज गॉन नाउ, ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। तो इसका और इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि आईज के साथ साथ आई का जो प्यूपिल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे माउथ। तो माउथ भी आईज के जितना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन माउथ को क्या है, माउथ हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। देखो ह्यूमन बॉडी अपनी आंखों को इतनी जल्दी नहीं कंट्रोल कर सकती जितनी जल्दी माउथ को कंट्रोल करती है, और इसका रीजन ये है कि माउथ आप सिर्फ बात करते टाइम या खाते टाइम इस्तेमाल करते हो, या फिर यॉर्निंग के टाइम इस्तेमाल करते हो, और ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में है लगभग। यॉर्निंग कभी कभी नहीं होती, उबासी लेना कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होता, अदरवाइज मेजोरिटेरली आपके कंट्रोल में होता है। वेरएस आपकी जो आई लैशेस हैं वो अनवॉलंटरी ब्लिंक करती हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो क्रेनियल नर्व होती है वो उस आई को भी उसी तरह कंसीडर करती है जिस तरह वो आपके आई लैशेस को कंसीडर करती है। सो दैट्स व्हाई आईज के इमोशंस कंट्रोल करना बहुत टफ है। और एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया कि क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारे कान के नीचे से आती है, और
पूरे 43 के 43 मसल्स को जुड़ जाती है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा ना कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी बॉक्सर को या किसी ऐसे आदमी को जिसको कान के नीचे चोट लगी है बहुत जबरदस्त, तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना बंद हो जाते हैं आफ्टर हिज रिकवरी। दो देर आर मेनी पीपल जो फुली रिकवर कर जाते हैं, मगर कई बार नहीं भी होता। तो यू कैन, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सी, इफ समवन इज इन कोमा ही विल नेवर मेक एक्सप्रेशंस। कोई बंदा कोमा में चला गया तो वो कभी एक्सप्रेशंस नहीं बनाएगा अपने चेहरे पे। वो क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसकी क्रेनियल नर्व जो है वो सप्रेस हो जाती है, तो वो चेहरे पे एक्सप्रेशन बना ही नहीं सकता। हाँ, वो सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, बट वो एक्सप्रेशन नहीं बना सकता अपने चेहरे पे। और साथ साथ वो बॉडी के अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल स्टिल रहता है। तो माउथ का हम देखते हैं। माउथ जो है ये फाइनल पीस है फेशियल एक्सप्रेशंस के पजल्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखो अब जॉ ड्रॉपिंग क्या दिखाता है। जॉ ड्रॉपिंग हो गया इस तरह से। व्हाट इज दिस? Shocked. Shocked. No, no, it's surprise. It's not shock. Yeah, so shock is also a kind of surprise, but shock is when you feel very bad about something. Surprise is when you feel happy about something which is all of a sudden. So it can be shock or surprise, but mostly it is surprise. Uh, the second thing is open mouth. Simple muh khulna. What is this? Scared. Scared or fear. Very good. And then open mouth head on one side. एक तरफ से मुंह खुलना, that is hate. ये मेरा फिर से गड़बड़ हो गया. So this is hate. समझे आप? और हेट का जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग है। सी, अफ्रीका में जो हेट का एक्सप्रेशन है वो है कि आप अपने लोअर लिप्स को अपने अपर लिप्स के नीचे दबाते हो, जैसे कई सारे जानवर करते हैं, या फिर कुछ जगह दांत दिखाए जाते हैं, पूरा मुंह खोल के दांत दिखाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो हेट। बट यूनिवर्सली ओपन माउथ ऑन वन साइड, दैट इज हेट। एंड कॉर्नर रेज्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज हैप्पीनेस। समझे? कॉर्नर रेज मतलब स्माइल, और बंदा स्माइल तब करेगा जब वो खुश होएगा। बट व्हाट अबाउट दिस कॉर्नर्स डाउन? ये क्या है? Sadness. दिस इज सैडनेस। ओके, तो ये तो रहा। अब इनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। व्हाट इज दिस? वो तो कार्टून थे, ये असली का इंसान है। ये क्या है? Surprise. यस, दिस इज सरप्राइज। हिज आईब्रोज आर रेज्ड, आईब्रोज आर आर्क्ड, एंड इसकी आंखें बड़ी हो गई, सो ही इज सरप्राइज। व्हाट अबाउट दिस? Ignoring Annoyed. something. Annoyed. No, he is angry. See, he is angry and he is trying to shout. Look at his eyebrows and his eyes as well. Okay. So what is this? ये बता दो, ये क्या है? देखो, इसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं न्यूट्रल फेस। कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे, नॉर्मल है एकदम। बट प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको कहते हैं पोकर फेस। आपने देखा होगा जो ब्लफ खेलते हैं या पोकर खेलते हैं वो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आने देते। और रिसेंटली कुछ बच्चों के साथ मेरा ब्लफ का सेशन हुआ था, जिसमें हमने फेस एक्सप्रेशंस को छुपाना सीखने की बहुत ट्राई की थी। तो दे कैन रिलेट, दिस इज पोकर फेस और दिस इज न्यूट्रल फेस। एंड व्हाट इज दिस? Happiness. Yes, this is Happy. happiness. His lips are cornered up. Corners जो हैं इसके lips के वो ऊंचे. This is happiness. And what is this? Sadness. Sadness. And आप इसके eyebrows भी देख सकते हो. So angry face के time eyebrows जो हैं वो nose के ऊपर जो वाला जो हिस्सा वो एक दूसरे के पास आता है, but sadness के केस में वो ऊपर चले जाते हैं, corners नीचे. And lips के जो corners हैं वो भी नीचे चले जाते हैं. And what is this? Thinking. Confused. Confused. Doubtful. He is trying to think about something and he is confused. Very good. And what is this? Funny faces. हाँ, funny face तो है, but expression क्या है? मतलब ये तो है तो funny है, expression क्या है? Annoyed. क्या? Annoyed.
okay, let's keep it for some time. इसको body movements हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. This is a very peculiar and eccentric face. If you can understand what is eccentric, this is the one. ये कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दे रहा अपने पे और ये ऐसे ही कर रहा है. मतलब इसका कोई प्रॉपर, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक, जो कि एक किसी इंसान का पागलपन शो करे. So eccentricity is a very different topic in mental state of the guy. We'll study it later on. We can leave it here. What is this? ये क्या है? Anger. No, this is not anger. This is somewhat anger. This is contempt. So contempt has some part of anger in it. Contempt होता है कि अपने से किसी, no, this is disgust, and disgust here has some part of anger. Disgust होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे इसको देखो उल्टी सी आ गई, मुझे बड़ा डिस्कस्टिंग लगता है ये. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट कि मुझे बड़ा अजीब गंद लगता है ये, जो इसको देखता हूँ तो मुझे उल्टी आती है. So this is disgust, and this is contempt, कि अपने से नीचा सोचना किसी को. This expression is contempt, properly contempt, कि ये है ही क्या, बेकार आदमी है, मैं इससे बड़ा सुपीरियर हूँ, ये है क्या. So this is contempt. Is everybody clear about these faces? अरे किसी को पूछना है कुछ? Okay, we shall move. ये है टिप्स आपको पहचानने के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं. तो देखो, डिसगस्ट कैसा है, एंगर कैसा, सरप्राइज कैसा, कॉन्टेम्प्ट कैसा है. कॉन्टेम्प्ट में इसका एक साइड का लिप जो है वो अलग जगह गया है. दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 4. नंबर 1 इज इनर ब्रो रेस्ड एंड नंबर 4 इज ब्रो लोअर्ड. तो ये इसने लिप्स के साथ किया हुआ है. हैप्पी फेस में see number 1 and number 2 is outer brow raised, inner brow raised, and 2, 5 and 6. So 6 is cheek raised, 5 is upper lid raised, and what else is it? यही चीजें हैं इसमें. वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो फेयर के केस में क्या है कि आईब्रो इसका इनर ब्रो रेस्ड है, आउटर ब्रो भी इसका रेस्ड है, एंड देन लिप का आउटर ब्रो भी इसका रेस्ड है, और अपर लिड इसका रेस्ड है. और वैसे ही आप देख सकते हो नंबर 6 इसके चीक रेस्ड है, नंबर 4 इसका ब्रो लोअर्ड है यहाँ से. So you can figure out all these expressions by looking at this. Is it clear? ये एक मेमोरी मैप्स है. देखो, हर एक सोसाइटी में जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसा ही होता है. Is it clear? Okay. So we'll have an online test right now, जो कि 10 मिनट का है. Just give me 1 second. हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं. Just give me 1 second. Okay, ये 10 मिनट का ही टेस्ट है. So I want all of you to do it very quickly. Okay. So कोई एक बंदा अपना नाम बता दो मुझे, या मैं कौन करेगा ये? जल्दी जल्दी, 2 मिनट हो गए यहीं पे. हमारे पास टोटल 10 मिनट बचे थे, 8 मिनट रह गए. आई थिंक फैसल श्योर सबसे बहादुर है फैसल. ओके, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फैसल करेगा, आप सब पार्टिसिपेट करो. सो व्हाट डज दिस फेस मीन? इसका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी जल्दी. Anger. देखते ठीक है या नहीं. So anger, yes, you are correct. Anger is one of the 7 micro expressions that we have discovered. Psychological studies have identified 3 causes of anger. अब 3 cause क्या होते हैं anger के? Whenever desires, goals or expectations are not met, when we feel threatened, or when we are using anger to mask other emotions. हम गुस्सा दिखाते हैं अपने चेहरे पे दूसरे इमोशंस को छुपाने के लिए. तो let's go. Your facial expressions can change. अब आपके facial expression कैसे change हो सकते हैं? The way people feel towards you या the way you feel towards people. मतलब आप दूसरे के बारे में क्या समझते हो, या दूसरे आपके बारे में क्या समझते हैं, या फिर दोनों?
सो इसका आंसर मैं बोलता हूँ, इसका आंसर है दोनों। बिल्कुल सही, इसका आंसर है दोनों। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है? व्हाट डज दिस फेस मीन? ये चेहरा देखा, ये क्या दिखा रहा है? Contempt. कंटेम्प्ट। चलो ट्राई करते हैं। व्हाट दिस? Dobita बिल्कुल करेक्ट था। सी, कंटेम्प्ट इज वन ऑफ द 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस। तो अब कॉन्टेम्प्ट का क्या होता है? कॉन्टेम्प्ट पे अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं स्लाइट हैप्पीनेस से या बोर्डम से। मगर कॉन्टेम्प्ट ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्टेम्प्ट बहुत अलग है छोटी सी खुशी या बोर्डम से। ठीक है, तो लेट्स गो। अब व्हाट डज दिस फेस मीन? ये समझ आया सबको? ये चेहरा Disgust. डिस्गस्ट। ओके, ये डिस्गस्ट किसने बोला है? जिन्होंने बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला। सी, एवरीवन हैज अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड फॉर what triggers their disgust. The more disgustable you are, the more judgmental you are always. तो ये समझने वाली बात है कि डिस्गस्ट क्या होता है और डिस्गस्ट की लिमिट क्या होती है, किसको क्या चीज कितनी बुरी लग सकती है, कितनी घिन आ सकती है किसी को किसी से, वो हर एक बंदे पे डिफरेंटली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज को देखकर मुझे बुरा लगे उस चीज को देखकर आपको भी बुरा लगे। तो साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में बहुत डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। इसको हम, अब ये फेस क्या है? इसके आईब्रोज भी रेज है। Surprise. सरप्राइज। ओके, लेट्स सी। ना, दिस वाज नॉट सरप्राइज, दिस वाज फेयर। Fear. फेयर। अब ये कौन बोल रहा है फेयर? ओके, दिस वाज फेयर। और फेयर कैसे आ सकता है? देखो, चैंपान यूनिवर्सिटी जो है, इसने 5 फेयर्स अमेरिका में ढूंढे थे जो लोगों को है। वो पब्लिक स्पीकिंग, हाइट्स, बग्स, स्नेक्स एंड अदर एनिमल्स, ड्राउनिंग और ब्लड नीडल्स। और ये अक्सर पूरी दुनिया में सबको इन 5 फेयर्स, ये 5 के 5 फेयर्स हैं, ये डर है इन 5 चीजों का। सो लेट्स कंटिन्यू विद अदर थिंग। ये क्या है? Happy. हैप्पी। ओके, सो यस, दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इनमें दिया है कि द हेल्थ बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंसिंग जॉय इंक्लूड बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड मैनेजिंग पेन। एंड व्हाट डज दिस फेस मीन? ये सबको पता लग जाएगा। Sad. 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 This is yes, you are correct. This is sadness. और अब हम इसको देखते हैं। What is this face? Excitement. देखो Be यहाँ पर surprised. सरप्राइज भी है ये, और गिडलीनेस भी है। एक चीज डिसाइड कर लो, सरप्राइज या Surprise. एक्साइटमेंट। ओके, सरप्राइज। आई विल क्लिक ऑन Surprise. सरप्राइज, लेट्स सी। यस, यू आर करेक्ट, दिस इज सरप्राइज। सो यहाँ से देखो, यही चीज है। आपको ना सब सब देखना है। 3 पार्ट्स हैं, आपको आंखें भी देखनी है, आईब्रोज भी देखनी है और माउथ भी देखना है। तो इसकी आंखें देखकर लगता है एक्साइटमेंट है, बट इसका मुंह खुला है, इसका जॉ जो है वो ड्रॉप्ड है। दैट इज व्हाई इट इज सरप्राइज। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। इनमें से किसकी दिखा रही है कि वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ये 4 बंदे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको कौन लग रहा है किसी को आइडिया? ये हम पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज में अलग से, बट गेस मार लो। Third one. थर्ड C. वन, कोई और? A. तो क्या बोल रहे हैं? बी? A. ए? First one. The A. ओके, और कोई? ये दोनों नहीं है। देखो, सी वाला जो है ना, ही इज जस्ट स्टेयरिंग एट यू, ही इज मेकिंग एन इमोशनलेस फेस। तो वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा रहा है कोई। सो वी कैन नॉट जज इफ ही इज कॉन्फिडेंट और नॉट। हाँ, जो ए है, दिस टू वी कैन नॉट जज बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट हर लिप्स राइट नाउ, ऑल्दो वी आर लुकिंग एट हर आईज एंड वी आर लुकिंग एट हर आईब्रोज, और इसके आईब्रोज भी रेज हैं। बी जो है, इसने भी, इसके अंदर थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट दिखता है चेहरा छुपा के, या फिर ये कुछ आपसे छुपा रहा है। देखो, जब भी कोई बंदा अपना मुंह छुपाता है ना, दैट मींस ही इज आइदर, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या वो आपसे कोई ना कोई चीज छुपा रहा है। और कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब बंदा खुल के कुछ करता है। एंड यूनिवर्सल सिंबल जो है कॉन्फिडेंस को, वो है दोनों हाथ रेस, जिसको हम विक्ट्री भी बोलते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार कोई बॉक्सर वॉक्सर जीत जाता है तो दोनों हाथ हवा में ऊपर करके ऐसे
अच्छी तरह से नाचता है. So this is universal pose for confidence is displayed when a person raises their arms towards the sky and takes up as much space as possible. ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आप अपना स्पेस भी अच्छी तरह घेरोगे. और ये विक्ट्री पोज भी इसी को कहते हैं. एक तो वो वी सेल्फी वाला है और एक ये है कि दोनों हाथ हवा में और हाथ के या पंच बनाया हो या वी बनाया हो. चलो आगे देखते हैं. Detecting micro expressions is difficult to learn, or less than 10% of population is capable of accurately reading body language. तो ये true है या false है? True. True. Man. false. Yes, it is false. It's not true. It's false. हर कोई इसको सीख सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. And I think which of the following behaviors indicate a lack of trustworthiness? इनमें से कौन सा है जो आपका trustworthiness नहीं दिखाता? चार पांच है इसमें से टोटल. जल्दी सिलेक्ट कर लो. एक है leaning away from the questioner. आपके मतलब आप पीछे हट जाओ, थोड़ा झुक कर बैठो दूर. That head tilting is अपना सर एक तरफ झुकाना. Touching the stomach, अपना पेट को हाथ टच करना बार बार, या crossing the arms, touching the face, looking up in the left when answering, या rubbing or wringing hands, wringing hands. तो इसमें से कौन सा लगता है? Sir, I think 6. 6 और 5 है इसमें. चलो हम रैंडमली 5 Rubbing or wringing hands. ओके. First. ओके, फर्स्ट भी हो गया. ठीक है, क्रॉस आर्म्स भी रख लेते हैं और हेड टिल्टिंग भी रख लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. तो यहाँ पर 5 जो है वो 5 के 5 हमने गलत चूज किए हैं. सो आई थिंक लेट्स कीप इट दिस मच. ओके, अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए फैसल तो यू कैन गिव मी योर ईमेल और we can do it later on. So I think we shall keep this much. In case you guys have any questions, you can let me know anytime. So thank you once again, guys. You have been very wonderful today. So I'll see you later on day after tomorrow. Okay. Bye bye everyone.